Albert Einstein once said, "The important thing is not to stop questioning." The conversations are all about exploring different areas of science, philosophy, and in general about life. This is all about knowledge. Do not forget to share so that the string of knowledge, curiosity, leads us humans to become educated individuals. The feedback of yours is the key to improve the conversations I will have in the future. As the Simon Sinek said, the goal is not to be perfect by the end. The goal is to be better today. Okay, one, two, three. Hello, everyone. I hope you all are doing very well. So today we have with us Mr. Asad Islam, a mechanical engineer, a really a practical person, I could say. Uh, as well as we are talking about his academic career. He started his academic career from Garrison Boys High School and Intermediate College Lahore, Kent, completing his intermediate from Forman Christian College, famously known as FC College. And he studied mechanical engineering from University of Central Punjab, Lahore. And most famously, the abbreviation will be UCP. And now he's pursuing his MPhil in mechanical engineering. His practical skills. His practical skills personally, I experienced in the Amal Academy during Amal Fellowship, and it's really amazing. And we today now are discussing about love, machines, and humans. We will explore different areas, how love, machines, and humans can interact, or maybe there is a gray area between them. So, without further delay, first of all, I would like to welcome you, Mr. Islam. Thank you for giving us Thank some you. valuable time. Thank you. So, Thank you. you can use any language you want. It can be Urdu, English, Pashto, or maybe Hebrew or everything. It doesn't matter. So let's start with a basic question. According to you, what is love? Hmm. Well, this is kind of a very difficult question. इतना भी आसान है इसका जवाब देना, लेकिन अगर हम डेफिनेशन या उस पे जाएं तो फॉर मी लव इज जिसका मतलब कोई कोई अगर किसी पर्सन से है या किसी भी चीज़ से है, अगर हम पर्सन की एग्जांपल लेते हैं तो इसमें ये होता है कि जिससे हम सबसे ज़्यादा शेयरिंग कर रहे हैं, जिसके साथ हमें टाइम स्पेंड करना पसंद है, थिंग जिसको हमें यूज़ करना बहुत पसंद है, और उस स्पेसिफिक चीज़ को स्पेसिफिक पर्सन से हमें प्यार है, दैट इज़ कॉल्ड लव। ये कह Oh, लो कि एक फीलिंग होती है, hmm. It's kind एक of फीलिंग feeling. है जो जनरेट होती है किसी के साथ रह के, उसको जान के। जितना हम उस बंदे को जानेंगे, जितना हम उस चीज़ के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हमारी जो बॉन्डिंग है उतनी स्ट्रांग होती रहेगी। और उस बॉन्डिंग को फिर एक अगर हम ओवरऑल नाम देना चाहें तो वो लव है। Hmm. Amazing, amazing. But you talk very much like specific topic like banda. हम्म। Banda is important. क्योंकि you are also a human, definitely, definitely. So in that case, we love humans more than other animals or maybe other species. So for me, how love is generated, I would like to say that it's kind of a feeling which we come up with after a lot of hate. Hate comes with the love, I guess. Hate and love, like if you hate someone like at the level of like 100%, then you will love at some degree too. बिल्कुल। वो कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, तो तो पहले जंग होगी और फिर प्यार होगा. दिस इज व्हाट आई बिलीव. ये दोनों एक ही कश्ती की दो चीज़ें हैं, ये कह सकते हैं हम। हाँ, या वंडरफुल. सो अगर आजकल के दौर की बात करें, वी आर लिविंग इन द era of technology, era of artificial intelligence and everything. So the question naturally comes to our mind कि machines के साथ love develop कैसे किया जा सकता है. We say that we like machines, but how we can love machines? If we cannot love machines, why not? That's the question. ओके,
इसके लिए एक एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल हम कहीं जॉब करते हैं जाके, ये जॉब छोड़ो, हम इंटर्नशिप से स्टार्ट करते हैं। हम कहीं जाके इंटर्नशिप कर रहे हैं किसी के अंडर, और वो स्पेसिफिक पर्सन हमें ड्यूटीज़ बताता है, हम उसके काम करते हैं, और जब जैसे जैसे हमारा इंटर्नशिप स्पैन इंक्रीज होता रहता है, हमें आइडिया होता रहता है कि यार अच्छा इस बंदे को अब इस चीज़ की ज़रूरत है, इस बंदे को अब इस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर वो 2 बजे आ रहा है उसको ये फाइल चाहिए, अगर वो 3 बजे आ रहा है उसको क्या रिपोर्ट देनी है। तो एक होता है किसी इंसान की ज़रूरत बन जाना। जब ये मेरे फादर कहते हैं कि अगर आपको जॉब में सक्सेसफुल होना है ना, या फिर अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो उस अगले की ज़रूरत बन जाओ, कि उसको तुम्हें ये पता हो कि अच्छा जी वो अब जा रहा है, तो अगर कोई मशीन पे खड़ा है, कोई काम कर रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यार इसको ये वाला टूल चाहिए, अब उसे ये चाहिए, अब उसे ये वाली चीज़ चाहिए, यूँ करके। सिमिलर इज द केस विद मशीन्स। अगर अगर आप कहते हो कि हम मशीन से प्यार किस तरह कर सकते हैं, तो आई थिंक एक गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन एक अपना परसेप्शन है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जितना ऑटोमेशन इंक्रीज होगा, जितनी ऑटोमेटिक मशीन्स हो जाएंगी, आई थिंक उतना एक प्यार जो है वो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि अब आप देखो, फॉर एग्जांपल आप सुबह उठे हो, ठीक है, एक मैंने बेसिकली एक ऐड देखा था इसमें, उसमें दिखाते हैं कि एक बंदा सुबह उठता है, खुद ही उसका बेड वर्टिकल डायरेक्शन में आता है, वो खुद ही चल के जा रहा है, सारा मुंह हाथ धुल रहा है, सब कुछ यूं सब कुछ हो रहा है। तो इस सेंस में मशीन अब उस बंदे की जरूरत बन गई है मशीन, ठीक है। अब इस सेंस में हम कह सकते हैं कि शायद उसको यूं प्यार हो जाए, लेकिन मैं कोई 100% नहीं कह सकता ये कि पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज़ है, उसे ना रिएक्शन चाहिए होता है। उसे अगर एक बंदा, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ, तो मुझे भी होगा कि यार वो भी मुझे कुछ दे, या दे नहीं मतलब वो भी मुझे प्यार करे, इस तरह हो। तो अब मशीन हमें हमारी ज़रूरत तो पूरी कर सकती है, लेकिन हमें जो चीज़ें, जो फीलिंग्स वगैरह चाहिए होती हैं, वो आई थिंक नहीं दे सकती। नहीं इस सेंस में अगर आप कहना चाहो कि हाँ ठीक है, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और एक ज़िंदगी का हिस्सा है, उसे प्यार हो गया है, तो यस। नहीं, मेरे ख्याल में अगर कोई चीज जरूरत पूरी कर रही है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, हम्म गिव एन एग्जांपल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स को मेरे नजदीक, इफ आई ट्राई टू एक्ट लाइक अ मशीन मे बी, और मे बी अ नेचुरल ह्यूमन, जो कि साइंटिफिक तरीके से, लेट्स से टेस्ट ट्यूब बेबी समथिंग लाइक दैट, उधर आया, उसको पेरेंट्स का नहीं पता, ठीक है। तो मेरे लिए काइंड ऑफ प्यार वही है जो मेरे साथ होगा। इट डजेंट मैटर कि वो मशीन है, मेरे पेरेंट्स हैं, और फेलो ह्यूमंस और अदर एनिमल्स। सो पॉइंट इज कि मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज को लाइक करते हैं, so you should fall in love too. For example, if I love books, which is not by the way, तो मैं मतलब है कि मुझे फिर No, प्यार भी you are होगा। lying. I'm sorry, I'm cutting you a line. Look at your behind. You love books. हाँ, तो if you like someone, for example, I believe that there is no need for like a physical thing. You are talking about the reaction. You can get a reaction from mobile. For example, I have a technology like chatbot Mitsuku. It's an artificial intelligence chatbot, and some apps like Replica. So it's very simple. Like you put data, or the model of that app will train on something on the data, and you can talk to him or her. Mitsuku is she, so let's say her. So you feel like you are interacting with a person. मतलब अगर आप एक न्यूट्रल होकर देखें, तो यू कैन नॉट से दैट आई कैन नॉट लव। मोस्टली ह्यूमन है कि मैं लाइक करता हूं, बट मैं लव नहीं करता। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं करते, यू शुड बी। नहीं, ये होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ को लाइक कर रहे हो तो उसको लव भी करो। अम, अब मैं इसमें एग्जांपल, खाने की एग्जांपल ले लो यार। खाने में अब फॉर एग्जांपल, अब कोई आज कुछ पक गया, अब मैं खा लिया, वो मुझे वो पसंद है। एक एक चीज़ होती है कि यार आपको बहुत पसंद हो, कोई सब्ज़ी बनी है, आई लाइक इट, मैंने खा ली। अगर मेरे सामने सब्ज़ी पड़ी है और साथ मेरे सामने कोई पिज़्ज़ा पड़ा हुआ हो, तो आई विल प्रेफर पिज़्ज़ा बिकॉज आई लव इट। एक लाइक चीज़ और एक लव चीज़, ये फिर डिफ्रेंशिएट आ जाता है।
एक आप लाइक कर रहे हो, वो अपने उसके साथ रह रहे हो, आपको कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन एक जो चीज़ जिसके साथ आप लव करते हो उसके साथ रह रहे हो या उसको खा रहे हो या उसको कुछ भी कर रहे हो, तो वो एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है। हम्म डिफरेंट चीज आ जाती है, बट एज यू टॉक मतलब है कि ना कंपेनियनशिप, humans live in a group, living in the group from maybe thousands of years. So मैं कहता हूँ कि अगर companionship है, so you like someone and ultimately you will fall in love, ठीक है। but humans मतलब है कि वो नहीं कहते, कहते कि हम understand, मतलब है कि हम love नहीं कर सकते most of the time. There are some exceptional cases. हम like कर सकते हैं. For example, I would like to give example of machines. For example, mobile phone. हम किसी दूसरे इंसान से ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम अपने मोबाइल फोन को प्रेफर करते हैं या फिर उसको लाइक करते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन लाइक प्रोवाइड सिक्योरिटी, एंड मोबाइल फोन की जो अच्छी मुझे बात लगती है वो जज नहीं करता अभी तक, द चैट बॉट्स एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। सो आई बिलीव कि देखें, अगर आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं in a relationship, what we like want from other person, other entity, trust and companionship, और humans के बारे में तो फिर वो some desires too, but these are two factors मैं believe करता हूँ, अगर ये आपके पूरे हो रहे हैं तो you should fall in love, but let's say वेल हाँ बोलो बोलो। नहीं continue. Okay, okay. I'm saying like I love mobile phones because I love to contact with the people, not because I love the machines. I'm linking the love with people through the mobile phone. So can I say that I love mobile phones because a human cannot live without human beings or people around him, or he cannot one cannot just live with the machines all the time. He is using that machine, that particular thing to contact with the people, to contact with others. Well, that's a really, that leads to a very specific and important question. Like, अगर हम machines को या फिर mobile phone जो हैं, you said that it's जी a connection, a link between other humans and you and other humans, ठीक है? बिल्कुल तो बिल्कुल अगर जो other side of humans है, अगर हम उसको replace कर दें maybe some app, for example Mutsuki, you believe that it's an maybe a person, so you can fall in love. मतलब है कि फिजिकल चीज इस चीज में मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें रिएक्शन आए थोड़ा सा, तो रिएक्शन तो मोबाइल भी दे देगा। मे बी इफ यू आर सैड एंड द मोबाइल एंड Mitsuki know that you are sad because based on your personal data, for example you talk to some person and he know about everything, he or she know about everything, ठीक है? तो अगर आप सैड हो तो यू काइंड ऑफ, ही और शी विल इन मतलब है कि ना खुद ब खुद देख लेगी कि बंदा सैड है, मैं इसे प्रोवाइड करूं। तो मेरे ख्याल में इंसानों को यूं मतलब मशीन्स को थोड़ा सा ना एज देना चाहिए। दैट्स अनदर टॉपिक के, मतलब जब हम मशीन्स के बारे में आते हैं ना, वी लाइक बिकम वेरी क्रिटिकल। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ऑटोमेटेड कार्स जो हैं, टेस्ला एंड BMW ये सारे डेवलप कर रहे हैं, वो ह्यूमन से ज्यादा सेफ है। और इलन मस्क जो वो तो कह रहे थे कि 200% सेफ हैं ह्यूमन से, क्योंकि मोर देन 70,000 पर्सन यूएस के अंदर कार एक्सीडेंट के अंदर इस दुनिया से चले जाते हैं। सो व्हाट आई से दैट कि वो कह रहे थे कि हाँ, इलन मस्क कह रहे थे कि आप मशीन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे एंड आफ्टर सम टाइम, मे बी 100 years, दैट्स द मैक्सिमम, आप अल्टीमेटली आपने लव कर लेना है मशीन से। ह्यूमंस अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। व्हाई डू यू थिंक दैट, ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? जैसे दैट्स लीड टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक द राइट्स, द ह्यूमन राइट्स एंड मशीन राइट्स एंड एनिमल। एक सबसे पहले जो एक चीज़ आती है ना, अगर हम फॉर जैसे आपने एग्जांपल दी, हम सैड हैं,
अब देखो अगला मशीन हमें तभी देखेगी, उसको हमने प्रोग्राम, मशीन प्रोग्राम्ड है पूरी, उसे हम इंसानों ने प्रोग्राम किया कि ठीक है जी, अगर कोई सैड है तो उसको यूं करके देखो, उसके साथ ये करो, उसके साथ वो करो। लेकिन मशीन के अंदर जो फीलिंग है ना, मशीन वो नहीं शो, मशीन के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हमें जो रिस्पांस मिलेगा, हमें जो एक एक इंसान, जैसे देखो अगर कोई, फॉर एग्जांपल अगर आप सैड हो, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मशीन को एक लिमिटेड कह लो लेवल तक हमने उसको कर दिया कि ठीक है जब इंसान इतना सैड हो तो ये करो, इतना सैड हो ये करो। उसके बाद इंसान को खुद समझना होता है अगले को, क्या ये बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है, उसके बाद जो एफर्ट्स आती है ना अगले इंसान की तरफ से, वो मशीन नहीं दे सकती, क्योंकि इंसान देखता है उसको कि क्या कितना ये उदास है, कितना खुश है, और उसके बाद अपनी एफर्ट शो करता है उसकी, उसका मूड चेंज करने के लिए, उसके लिए, अपने लिए। तो ये एक पहले था। सेकंड अगर हम देखें ना, तो आपने जो कहा कि 100 साल, हाँ सेफ्टी के हिसाब से नो डाउट कि बहुत सेफ है मशीन इस मामले में। और सबसे जो अच्छी बात, नो डाउट जज नहीं करती मशीन। लेकिन कुछ इंसान हैं लाइफ में, अगर आप उनसे सच में प्यार करते हो, और अगर वो भी आपसे प्यार करते हैं, अगर हमें लाइफ में ऐसे लोग मिलें, तो नॉट एवरीवन जजेस ईच अदर, ये है। सो आर यू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, के मतलब है कि मे बी 100 years मशीन जज नहीं कर रही है, आप मशीन पे ट्रस्ट भी करते हैं कि एक आम पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि वी शुड फॉल इन लव, मतलब है कि वी शुड लव मशीन? डू यू बिलीव दैट और नॉट? आई थिंक नो। You think no? नो, नो, बिकॉज ह्यूमन नीड ह्यूमन टू लिव, otherwise they cannot live. There's a movie, I think, I remember the name, Jaxi, वो देखिए। नहीं नहीं, मैंने जैक्सी, नहीं, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वो एक करेक्टर, एक लाइफ नॉर्मल करेक्टर दिखाया, उसकी लाइफ मतलब सही नहीं चल रही होती, उसकी रूटीन ख़राब होती है और सब कुछ। तो वो मोबाइल फ़ोन लेता है, बेसिकली कुछ भी हो, लोग बैठे हैं मोबाइल यूज़ कर रहा है, कहीं जाना है पिक्चर ले ली मोबाइल, चाहे वो घर बैठा है लेकिन उसने मोबाइल में पिक्चर लेके शो कर दिया कि वो कितना एंजॉय कर रहा है। और बेसिकली वो मोबाइल जैसा सीरी है, इस सब ऑपरेशनल है, ठीक है, वहाँ सीरी थी जैक्सी के नाम से। तो वो जैक्सी का काम ये था कि उसने उसकी लाइफ बेटर करनी है, बेटर इन सेंस उसको रूटीन में लाना है उसको। अब ये था कि उसका लाइफ को एक फुली पैटर्न करना है, और एक कह ले बाउंड्री क्रिएट करनी थी उसकी लाइफ के इर्द गिर्द। लेकिन इंसान हमेशा मशीन के इर्द गिर्द नहीं रह सकता, उस बाउंड्री में नहीं रह सकता। उसे एक्सप्लोर करने की आदत होती है, उसे खुशी चाहिए होती है, उससे लोगों से मिलना अच्छा लगता है। और एक तो बेसिकली उस मूवी में ये दिखाया था कि कहाँ से सारा कुछ शुरू हुआ था। वो बहुत सख्त 24 घंटे मोबाइल यूज़ करता था। जिस तरह सैटरडे संडे हम ऑफ होता है तो वो उसके अंदर बैठ के जी मोबाइल यूज़ कर रहा है, या फिर अपना कोई मूवी वगैरह देख रही हूँ सब कुछ। लेकिन इशू ये था, वो इंटरेक्शन नहीं थी। वो जॉब पे जाता था, लोगों से बात करता था, उसे यार क्या ये क्यों बात कर रहे हैं मेरे से, कुछ ऐसा था। फिर एट द एंड यही हुआ कि ही फॉल इन लव विद ह्यूमंस, एंड आहिस्ता 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 जो उसने जो मोबाइल था, जैक्सी जो नेम था, वो हटता गया और एट द एंड वो ख़त्म हो गया। तो जो मशीन्स हैं हमें ज़रूर हेल्प करती हैं कि हमारी लाइफ ट्रैक पे आ जाए, लेकिन वो हम पर होता है कि हम उनको किस तरह लेकर आए अपनी लाइफ को ट्रैक पे। या तो ये होता है कि फुली बाउंडेड हो जाएं मशीन्स के साथ, या फिर ये होता है कि उनको एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करें और उसके बाद जिनकी जितनी जिसकी ज़रूरत है। क्योंकि ये है कि इसका एक्सेसिव यूज़ जितना हम करते रहेंगे किसी भी चीज़ का, वो ख़तरनाक है। एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन, उसको यूज़ नहीं करते, उससे प्यार करते हैं, और एंड एनिमल्स टू। हाँ, I would like to disagree, but ठीक है, दोनों का एक different point of view है, and I accept it, ठीक है। So let's see, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि आफ्टर द टाइम, मतलब है कि वो उसने मशीन के साथ गुजारा, बट आल्सो स्पेंड टाइम सम विद ह्यूमंस, तो उसने अपनी सारी जिंदगी ह्यूमंस के साथ गुजारी है। तो
वो ह्यूमंस को ज्यादा मतलब है कि लव और लाइक करेगा अदर देन मशीन्स, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जैसे आप हैं, हम इतना टाइम मशीन्स के साथ नहीं गुजारते जितना लेट्स से अ पर्सन हु इज ऑलवेज ऑनलाइन, अ स्ट्रीमर, मतलब है कि 24 आवर्स जो है उसने ऑनलाइन रहना है, वो जितना एक कंप्यूटर से प्यार करता है शायद वो अदर ह्यूमंस के साथ ना करता हो। सो आफ्टर क्यों? सम उसमें टाइम, रीजन है ना, उसमें रीजन है ना कि अब वो ऑनलाइन आ रहा है, अपने कंप्यूटर से प्यार करता है। क्यों? एक, फर्स्ट उसकी अर्निंग वही है अगर वो स्ट्रीमर है। सेकंड, वो गेम खेल रहा है लोगों के साथ। अगर आप कह रहे हो कि हम मशीन के साथ टाइम स्पेंड करें, तो एक, हम ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा पैदा हुआ है और हमने उसको मशीन, एक रोबोट के हवाले कर दिया। उस बच्चे की जो फीलिंग है ना, वो एक सिर्फ एक माँ समझ सकती है, उसका बाप समझ सकता है। वो क्यों रो रहा है, अब रो रहा है, मशीन को क्या पता क्या क्यों रो रहा है ये। अगर हम उसे स्पेसिफिकली प्रोग्राम कर दिया, ठीक है जी इसको भूख लगी है, इसने चेंज करना है, या इसको गोद में ले लो, इसने खेलना है, चार चीज़ें हो गई। कुछ और भी तो होता है, अगर कुछ बीमारी हो, उससे उस सेंस में क्या करेंगे, तो मशीन तो कुछ नहीं कर पाएगी। सही है, सही है, different point एग्री of और view. नॉट? I still disagree because मुझे अब मतलब है कि ना क्लास के अंदर I was discussing something like the artificial intelligence और artificial general intelligence. Artificial general intelligence का concept ये है कि there will be an intelligence, it doesn't matter it comes from humans, ठीक है। तो after 100 years वो आ जाएगी और वो existential threats और everything, हम उसके बारे में बात करेंगे अगले किसी कन्वर्सेशन के अंदर। it will be a ठीक really है। interesting topic. So let's move to other question. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर देखें मशीन्स वर्क मच मच बेटर देन ह्यूमंस इन सम एरियाज, ठीक है, मोस्ट इन एरियाज। फॉर एग्जाम्पल लाइट इज अ मशीन, फैन इज अ मशीन एंड एवरीथिंग इज अ मशीन। फैन इज अ मशीन, थ्री इडियट्स डायलॉग बाय द वे। सो सिंपल चीज ये है कि अगर मशीन्स जो हैं वो हमारे जनरल टास्क को रिप्लेस करने में भी, वर्किंग इन अ फैक्ट्री और प्रोवाइडिंग अ स्पेस, जैसे आजकल कर रही हैं, कार इज अ मशीन, वो हमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं। क्वेश्चन इज कि हमें वो जो सेक्टर्स हैं, जैसे एक सेक्टर है प्रोडक्शन का या कार्स का, ऑटोमेटेड कार्स एग्जांपल अगर दें, उस तरह के जो हैं वो फुली मशीन्स के हवाले कर देने चाहिए। और हमें कुछ जो ह्यूमनली मतलब है ना प्योर ह्यूमन थिंग है, जैसे क्रिएटिविटी, अब तक क्रिएटिविटी कोई डिफाइन नहीं कर सकता, बट अब तक जो क्रिएटिविटी ह्यूमंस ने डिफाइन की है वो कहते हैं कि वो सिर्फ ह्यूमन कर सकते हैं क्रिएटिविटी, ह्यूमंस आर क्रिएटिव, ये एक बिलीव है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली द बिगर क्वेश्चन इज जॉब, मतलब है कि जॉब लॉस होंगी जब मशीन ह्यूमंस को रिप्लेस कर रही हैं, ठीक है। आई ऑल्सो डिसएग्री विद दिस पॉइंट, बट क्या हमें मशीन्स को इतनी ऑटोनॉमी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मशीन्स हमारी हेल्प करेंगी, हम उनको फुल ऑटोनॉमी देते हैं कि भाई फैक्ट्री में काम करो, लेबर बचेगी, कॉस्ट विल बी वेरी लेस फॉर द इन्वेस्टमेंट एवरीथिंग, ठीक है। तो हम उन चीजों में काम करें जहां पर हमें जरूरत है, जो ह्यूमनली जनरेटेड है, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिविटी एज वी टॉक अबाउट अर्लियर। तो मैं कहता हूं कि दे दो मशीन्स को, इख्तियार दे दो कि भाई वो काम करें, जो बाकी जो ह्यूमंस बचे हैं जो वर्कर थे, उन्हें कहीं उन्हें ट्रेन किया जाए और उनको किसी ऐसे क्रिएटिव काम के अंदर लगाया जाए जो अभी तक मशीन नहीं कर सकती, और मे बी 100 ईयर्स कर लें, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ये जो है ना स्किल बेस्ड क्वेश्चन, ये आजकल इतना मैं फेस कर रहा हूँ। लाइक हमारी अपनी फैक्ट्री है, जिस तरह प्रोडक्शन का काम हो रहा है, हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, या न्यू लोगों को लाना हो, क्या होता है उसमें। तो सबसे बड़ा जो इशू आजकल आ रहा है ना, वो ये होता है कि कुछ नए लोग हायर कर लिए हमने। अब उन लोगों को हायर करने के बाद जो नई जनरेशन आ रही है, कुछ उनका है कि जी हम बैठे हुए हैं, या फिर काम कम करें हम और हमें पे उतनी मिले।
कोई काम नहीं करता, या फिर ये है कि बहुत कम होता है कि प्रॉपर लेबर मिले कि ठीक है जी 9 to 5 आके हम आपको, मैं लेबर की बात कर रहा हूँ, उसकी नहीं, जो बंदा पढ़ के आया पर कि काम तो उसे भी करना चाहिए, लेकिन अगर जितना एजुकेशन उसने हासिल किया तो एक वो सीट पे आके बैठता है। तो लेबर में ये चीज़ मैंने देखी है कि अब ये जो आप बात कर रहे हो ना कि मशीनरी हो, तो ये उसका इम्पैक्ट है लोगों के दिमाग पे, ये कि जी हम आए हैं तो हम इतना काम क्यों करें, हम मशीन है ना काम करने के लिए। पहली चीज़ अब यहाँ पे क्या आती है, जितना हम किसी इंडस्ट्री के अंदर मशीनरी को लेकर आएंगे उसका फ़ायदा तो हमें बहुत मिलेगा कि जी लेबर नहीं है, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई और हमारा काम एक्यूरेट हो गया सब कुछ। उसका एक डिसएडवांटेज है, आहिस्ता अगर आप ये चेक करो, मशीन किसी चीज़ पे चलती है, कोई तो चीज़ है ना जो मशीन को चार्ज करती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स। अब एक चीज़ का प्रॉस देख लो कि कौन प्रॉस एंड कॉन्स हर किसी चीज़ के होते हैं, ठीक है। उसका अब आप ये देखो कि मशीन को जनरेट करने के लिए मशीन जो काम कर रही है उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जनरेटर्स चाहिए, ठीक है। उन जितनी बड़ी मशीन होगी उतना बड़ा जनरेटर वगैरह चाहिए होगा, ठीक है। उससे कितना जो इन्वायरमेंट को अनहेल्दी जो स्मोक प्रोड्यूस होगा वो, ठीक है। आप एक मैं देख रहा था एक जो भट्टी खिलाती है, हाँ भट्टी, जहाँ ईंटें बनती हैं वगैरह, धुआं हम्म, सब कुछ निकलता है, ठीक है जी समझ आती है। अब वो ईंटें बना रहा है, वो ईंटें वहाँ पे मजदूर हैं, उसने ईंटें बनाई, सब कुछ हो गया ख़त्म। अब ये देखो कि दूसरी साइड पे, अब मैंने वीडियो में ही देखा था, बेसिकली मुझे ऐसा नाम या कंट्री का नहीं पता, एक एज अ साइज ऑफ अ ट्रेन देयर इज अ मशीन, और वो चलती जा रही है, ठीक है, और बैक एंड पे ब्रिक्स जो है वो पक पक के निकल रही है, ठीक है। हम्म, लेकिन इसके अंदर जो स्मोक की क्वांटिटी है वो ट्रिपल है। मैं भी 4 दिन पहले एक गांव होके आया हूँ, ठीक है, जिससे बकरा ईद आने वाली कुर्बानी के जानवर के लिए देखने गया था। हाँ हाँ। तो वहाँ पे मुगल स्टील है, ठीक है, मैं गया था वहाँ पे, तो उसके साथ भी ना उनके जहाँ पे जानवर बंधे हुए थे, साथ ही मुगल स्टील है, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी यार, मैं अंदर गया, बहुत अच्छा लगा देख के सारा कुछ। अब उसको वहाँ हो गया 6 साल उस कंपनी को बने हुए। मैं अब जो वहाँ पे जिसने पाले हुए थे सारे जानवर, अब उसने इर्द गिर्द दरख्त लगाए हुए थे अपने, ठीक है। अब मुगल स्टील में क्या होता है, कटिंग होती है, स्मोक जनरेट होता है, मेटल की मेल्टिंग होती है, सब कुछ होता है, सारा मशीन वर्क है ये, ठीक है, लेबर है, ठीक, मशीन वर्क ज़्यादा है। अब वहाँ से जो स्मोक जनरेट हो रही है ना, उसका जो इर्द गिर्द का गाँव का इलाका है ना, वहाँ घास नहीं है, ना वहाँ दरख्त है, वहाँ लग रहे हैं लेकिन वहाँ उग नहीं रहे, खराब हो रहे हैं। हम्म, इसका कि कितना अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो तो सिर्फ एक छोटा सा एरिया है, और अगर हम पूरी दुनिया को इस तरह कवर कर लें तो क्या बचेगा, एनवायरनमेंट का बहुत बुरा हाल हो जाएगा ये तो। हम्म, सही है। ये इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है एक साइड पे हैं, बट आई आल्सो बिलीव दैट कि जो वर्कर्स या फिर लेबर्स आएंगे, मे बी दे यूज सम ट्रांसपोर्ट और एवरीथिंग, मे बी अ पर्सनल व्हीकल, फॉर एग्जांपल लेट्स से 100 जो हैं वो आते हैं अपनी अपनी बाइक के ऊपर, तो वो जो इन्वायरमेंट को इशू क्रिएट करेगा, वो एज कंपेयर टू द मशीन जनरेटेड स्मोक एंड एवरीथिंग, तो वो आप उसको कैसे कंपेयर करेंगे? आई बिलीव कि 100 जो कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले वो जो, अब देखो वो जो बाइक पे आ रहा है बंदा, वो भी एक किस्म की मशीन ही है, हम्म, उसने भी स्मोक जनरेट किया, सब कुछ हो गया। हम यहाँ पे वैसे होनी चाहिए, सबके पास गाड़ी हो, सबके पास बाइक हो, एक किसी का, हर किसी का एक एम होता है कि यार मैं, अच्छा मेरी जॉब लगी है या मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरे पास अपनी बाइक हो, और हर कोई लेता है, कोई ऐसे सोचता नहीं, ना कोई ऐसे सुनता है। लेकिन अब ये देखो, एक बस खड़ी है, उसके अंदर 40 मुसाफिर आ गए, और वही 40 मुसाफिर अपनी अपनी गाड़ियां ले लें अगर, तो कितना बड़ा डिसएडवांटेज है ये। 40 गुना ज़्यादा एनवायरनमेंट पे अटैक हुआ है एक किस्म का ये, ठीक है। रही बात आपकी लेबर की और उसकी मशीनरी की, तो नो डाउट मशीन, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखा था कि पेप्सी का प्लांट जो था, तो वहाँ पे पहले वो बेसिकली बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे 15,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने मशीनरी इंस्टॉल की और सब कुछ किया, फुली ऑटोमेटेड कर दिया, और अब वहाँ पे सिर्फ
हार्डली 100 लोग काम कर रहे हैं पूरे प्लांट पे। हम्म एक तरफ से वो सिर्फ चिप्स आलू डालते हैं एक प्रॉपर साइज का, और दूसरे एंड पे चिप्स पैक होके निकल रहा है। नो डाउट लेबर बची, सब कुछ बचा, लेकिन हमारे मुआशरे में ये नहीं है कि अगर आपको जॉब से निकाल दिया तो आपको कोई स्किल सिखा रहे हैं। यार ठीक है, तुम्हें जॉब से निकाल रहे हो, तुम ये स्किल सीख लो यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं होता। वो कहते हैं तुम्हारा जो मर्जी स्किल है, ठीक है तुमने मशीन पे ही काम किया, अब उसकी जगह मैंने ऑटोमेशन ले आया हूँ, तो अब तुम्हें मैं अगर जॉब से निकाल दूँ, मैंने ऑटोमेशन लगा दिया है, तो वो जो बंदा है वो तो फिर फारिग हो जाएगा, वो उसकी रोजगार तो कुछ भी नहीं रहेगा। हम्म हाँ, अगर आपने ऑटोमेशन इंस्टॉल करनी है तो आप ये करो कि उस जो बैच है, जो लेबर जो काम कर रही है, उसको फर्दर कोई स्किल या उसको फर्दर रेफरेंस दे दो कि यार ठीक है तुम इस इंडस्ट्री में चले जाओ, यहाँ ऑटोमेशन अभी नहीं हुई, इस दौरान या तुम कोई स्किल सीख लो, या फिर ये स्किल है जो मार्केट में बहुत यूज़ होगी, और उस हिसाब से तुम काम कर लो। क्योंकि पाकिस्तान में अगर जनरली देखें तो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अगर मैं किसी को कहूँ कि लेबर को यार तुम एडोब फोटोशॉप सीख लो, उसे तो लैपटॉप भी चलाना नहीं आता होगा मोस्टली को, तो हम्म ये इशू है। सो बट नो डाउट बहुत फ़र्क है ऑटोमेशन में, हाँ, एक्यूरेसी तो और। अगर हम एक आई एम सॉरी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनट, हाँ, मैंने पॉज नहीं किया। एंड यस, सो अगर हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं या फिर एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि एक फैक्ट्री का वर्कर जो है वो ऑटोमेशन की वजह से अपनी जॉब को लूज कर रहा है, तो हम उसको कोई स्किल सिखा दें, तो इन दैट केस मशीन्स आर ग्रेट, और मतलब है कि सब कुछ अच्छा है। उसका फिर अब ये नहीं ना, किसी को हमने जॉब से निकाला तो उसे बस यार ये निकाल के छोड़ दिया। उसने अगर आपको डेडिकेशन से 10 साल दिए हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप यार ठीक है तुमने 10 साल दिए तो क्या। उसने अपनी मतलब लाइफ के 10 साल दिए हैं, उसको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। आप पे दे रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसी जॉब से निकाल दोगे कि मैंने यार ऑटोमेशन पे एडवांस कर लिया, तो उसको बैक एंड पे कुछ देना होगा आपको, या आपको एटलीस्ट एक रेफरेंस देना होगा कि ठीक है तुम यहाँ चले जाओ, यहाँ काम कर लो। या फिर उस स्पेसिफिकली एक ह्यूमन, मेरा जो लॉजिक है वो ये है कि हर इंसान को एटलीस्ट अर्निंग के लिए भी और शौक के लिए भी 3 चीज़ें या 3 स्किल्स लाजमी रखने चाहिए। अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आईटी की भी इन्फो होनी चाहिए, मुझे थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की भी इन्फो होनी चाहिए। अल्लाह ना करे कभी किसी फील्ड में कुछ आए तो मैं स्विच कर सकूँ, मेरे पास एक हो। लेकिन कुछ लोग फिर यहाँ पे आके बात करते हैं कि यार हालात ऐसे नहीं होते, जब हालात हों, जब घर का खर्चा चल रहा हो तब भी काम होते हैं। उनकी बात बिल्कुल परफेक्ट है कि अपने एक मेंटली हमें स्टेबल होना चाहिए, हमारा दिमाग होगा तो हम अगला स्किल सीख पाएंगे। तो हम्म लेकिन अगर डेडिकेशन शो करे इंसान तो कर सकता। हम्म So let's talk about the rights of machines, the important topic, I guess. यार यहाँ uh, ह्यूमन राइट्स नहीं है। that's the sad thing. यूके डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ह्यूमन राइट्स को भी नहीं देखा जाता. But let's take an example of developed countries. For example, let's say US, UK और Germany. ठीक है, developed countries है. अगर मैं कहूँ कि first of all, I would like to show you one video ओके, about this is about spot. It is the unboxed therapy video. It's a great channel. I would like to recommend all of you that you should watch. So I would like to share screen. Here we go. So screen देखें आप? हाँ मुझे शो हो रही है। हाँ ठीक है, ये अनबॉक्स थेरेपी एक वीडियो है, एंड इट्स ऑन द 75,000 रोबोट डॉग स्पॉट. ओके, ठीक है, and I would like to show you such a dramatic music. So it's just the unboxing और everything. स्टार्ट करते हैं. Hmm.
its finger. It occupies the whole case. आगे करते हैं, ये थोड़ी सी बोरिंग है. The coolest moment is going to be watching it come to life. Oh, wow. Now I came to know why you are saying we can love machine or machines can replace human. Like I watched this video 100 times, but every time I watch, I feel something living, something I care about. It's like a real dog. बिल्कुल. Uh, टाइम की कमी की वजह से हम आगे पीछे करेंगे ताकि थोड़ा सा जल्दी गुजर जाए. It's okay, it's okay. It feels like मैंने a तो li- लिंक ले. A better version of dog. That's amazing. Well, there are 4 motors which are rotating, and there's a degree of freedom box which let him move anywhere. Hmm. Amazing. Right now they are controlling it somehow with the control panel. वहाँ पे एक screen है something है तो right now. But after the technology will grow at some certain level, so it will take decision by his own, huh? Like That's the Tesla. exciting topic. हाँ. If मतलब है कि इस केस के अंदर तो humans की control के अंदर है, whatever they want to do. But after technology growth तो ये automate हो जाएंगी चीजें. बिल्कुल. And they will have some मतलब है कि एक अपनी उनकी एक लाइफ होगी. मर्जी है तो.
इसको स्किन लगा के सब कुछ कर दो सेट, लगेगा नहीं कि ये रियल है या फेक है। दैट्स द सेम थिंग मैं रोबोट्स के बारे में कहता हूँ. रोबोट्स मिमिक ह्यूमन लाइक अ डॉग इज मिमिकिंग अ डॉग राइट नाउ, द स्पॉट. अगर हम स्किन और ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर दे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड अ मशीन? कंट्रोल। Control. That's the topic which और ये humans are बहुत, related to. हाँ लेकिन ये आसान, फॉर एग्जांपल अगर कोई जनरेट भी कर लेता है मशीन के अंदर कंट्रोल, लेकिन आप कह लो कि 1% होगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंट्रोल और फीलिंग कोई आम चीज़ नहीं है कि ह्यूमन ने साइंटिफिकली जनरेट कर ली एंड देन बस बूम। नाउ Let's see. आई वाज नॉट एबल टू सी द वीडियो प्रॉपर्ली, बहुत स्टक हो रही है। अच्छा, maybe some internet issue. आई थिंक ड्यू टू द स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, maybe. But let's see. मैं आपको ना एक स्पेसिफिक दिखाना चाह रहा था. Like this is what the dog is saying right now. मैं जब कैमरा का ये एंगल देखता हूँ ना, आई फील कि दिस इज लाइक अटैच्ड टू समथिंग ह्यूमनली थिंग जो इस तरह यस, मूव कर रहा है. इट्स अमेजिंग. बिल्कुल। लाइक उसने जो स्टेप जो उसने स्टेप लेने हैं, और उस पॉइंट पे ये नहीं कि एक सीढ़ी छोड़ के रख रहा है, कुछ बिल्कुल एक्यूरेट कर रहा है, जैसे हाँ. उसको जो उसको चीज़ दिख रही है। जैसे रबर, और उसके पाँव के बॉटम पे हाँ, देयर इज रबर समथिंग लाइक इसको फील करवाने के ग्रिप। लिए. हाँ. किसी को ना पता और रात के अंधेरे में आ जाए, अगले की वैसी मौत हो जाएगी सीरियसली। या. देखो, बगैर बगैर मुंह के वो चल रहा होगा, कोई कहो ये क्या आ गया। हाँ, Imagine they build a robot, imagine like one which is unfriendly. ये जो है बहुत ही कमाल की चीज है. अगर रोबोट जो है वो इंसानों के खिलाफ हो जाए तो व्हाट विल हैपन? इट्स लाइक अ टर्मिनेटर थिंग. इंसानों के इंसानों के खिलाफ हो जाए। अगेंस्ट. या हाँ टर्मिनेटर थिंग, देयर इज अ टारगेट, उसे आपने किल करना है और ये वो. यार, अगर ये पॉसिबल है तो मैं फिर थॉर हूँ। अच्छा, वो गिर गए या. तो खुद नहीं, उसको खुद वो
अच्छा, मुझे लगा था वो कोई और आके ठीक करेगा उसको. No, amazing, self-right thing. ये जो बिहेवियर था मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि डॉग्स भी काइंड मैं ऑफ परेशान हो. बिल्कुल. डॉग्स भी ना काइंड ऑफ दे काइंड ऑफ स्केयर समथिंग. अगर वो किसी चीज को गेयर नहीं कर सकते वो पीछे हट जाते हैं. रोबोट डिड द सेम बिल्कुल. थिंग. उसने कहा कि मैं इस जो ऑब्स्टिकल है उसको अवॉइड नहीं कर सकता, ये ओवरकम नहीं कर सकता. उसने हिम्मत हार दी है अब. बट हिंदू, ये इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे बहुत मजा आया था ये देखने में. वाह. ओके. लोग बहुत आगे पहुंच गए, हम ही पीछे. Robots are far away in future right now. That's an amazing video. I recommend everyone के इसे देखना चाहिए. कमाल है ये. Another video I would like to show. It's a little bit boring, but let's see. मतलब है कि इसी डॉग के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस किया गया है आइबो के अंदर. इसके अंदर आइबो. आइबो. Yeah. So here is आइबो. Let's have. चलो भाई. Skip ahead. Can you increase little bit of volume? Okay. Volume of the video. Pull this over here like this. Okay. Okay. Look how cute he is. Oh wow. I just cut this off of his neck here. There's a camera मैंने पहली नजर में बता दिया. tail. अभी Responsible for his wearing अभी मजा आने वाला है. Wait for the peak of moment. this of space. Moment of truth. Hopefully we have some battery in here. Oh. Whoa. क्या? Just stretch it out a little. यार डॉग्स रिप्लेस हो जाएंगे, मैं तो बता रहा हूँ. ह्यूमंस का नहीं, अगर ह्यूमंस का नहीं मैं कुछ कह सकता हूँ. Hey, over. Hey, man. Whoa. Yeah. Hey. You're still waking up. Hey. Wow. His movement is crazy. It is so cool. It's surprisingly animated. There are so many little actuators in here. Hey. Hey.
Yeah. What's happening? Hey, good boy. Oh, good boy, man. This Wow. is weird. This is good. इतना क्यूट लग रहा है वैसे. You like see what I did? Amazing thing, like he kind of interacting with him. पहला क्वेश्चन था ना मशीन से प्यार हो सकता है कि नहीं. यस. That's why I was going to show this at that. You are like, what the conversion from? Let's see. I vote. Oh, good boy. You see that right there, Dad? Shake hands. Oh, bang bang. Why you said this one gonna be boring? He's dead. Oh. Look at that. Can he get back up there? Wow. He can get up from there. I thought I was gonna have to pick him up for sure. This is too cool. This is so cool. Like, and I was watching it, feel like, kya amazing. बिल्कुल. एक और वीडियो जो है ना इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई वुड लाइक टू शो बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट. इट्स रियली मच रिलेटेड टू ये राइट्स. अब हम राइट्स की बात करेंगे तो आई जस्ट वांट टू शो. They pulling the truck or what? Yeah, they are pulling the truck. Oh. Yeah, exactly at that moment when the man pushes the robot, I feel like why? I feel really bad about it कि उसने रोबोट को क्यों पुश किया है. If रोबोट की जगह पे अगर एक डॉग होता तो you will feel bad about it because you care about animals. Maybe he felt a danger. Maybe like that's why. Yeah, that's another reason. Could be. Because हमारे ये होता है कि हम मशीन पे काम कर रहे होते हैं तो मशीन अपना जो जिस चीज़ के लिए बनी है वही कर रही होती है. गलती क्या हो रही होती है ह्यूमन की. और वहाँ उसका कोई कटिंग मशीन है तो क्या उसका हाथ कट जाता है. ठीक है. या कोई उंगली आ जाती है या पाँव पे चोट लग जाती है. कुछ ऐसे हो जाता है. तो मे बी उसे डर लगा हो जिससे मशीन पास आ रही है वो रुके ना मुझे टक्कर मार दे जिससे गाड़ियों में होता है क्योंकि वो मशीन है. ह्यूमन की भी साइकी नहीं ऐसी कि या वो तो मशीन है वो रुक सकती है या वो पीछे हो सकती है कुछ ऐसा. इसलिए Like this is all about the video and everything. Like आप imagine कर सकते हैं कि how crazy it is. बिल्कुल. I think in the future if there will be a war, then there will be no humans. Robots are fighting with each other. Maybe. And it would be a most safest war maybe. Unless there is no nuclear, then nothing is safe.
नो दैट्स अमेजिंग इन सेंस लाइक जितने भी हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं वहाँ पे एक ह्यूमन एक मशीन को ऑपरेट करके ये डब्बे यूं ऊपर रख रहा होता है। एक उसको हाँ, हमारे लैंग्वेज में कह रहे होते हैं ट्रॉली। उसे ट्रॉली के थ्रू क्रेन के थ्रू वो उठा के ऊपर लेके जाता है। और यहाँ पे आई थिंक दो यहाँ पे फायदे हैं। फर्स्ट, एक तो उस मशीन की जगह ये आ गया, और एक डिसएडवांटेज ये है कि अ, उस बंदे की एक तो जॉब चली गई ठीक है, लेकिन उसकी जगह एक मोर एफिशिएंट, अगर मैं इसको वर्कर कहूँ तो कहना बुरा नहीं होगा, एक मोर एफिशिएंट वर्कर आ गया है और जो काम भी सही कर रहा है, और जो हमारा ट्रॉली या उससे इन्वायरमेंट को खतरा था वो यहाँ पे आके वो भी खत्म हो गया। Yeah. So that's it. We can watch videos like 100 times and we will not bored. हाँ But let's see. Stop sharing. Here we go. So let's talk about the rights. Did you feel something when a man pushed a robot, like kind of feeling a bad feeling कि उसने क्यों push किया? Do you feel that कि 100 years के अंदर हमें robots को rights देने पड़ेंगे? अभी तक robots के पास कोई right नहीं है, क्योंकि एनिमल राइट्स के अंदर केस के अंदर भी क्या हुआ था, एनिमल राइट के केस के अंदर भी ह्यूमंस ने एनिमल्स को बहुत ज्यादा यूज किया है एंड दे आर यूजिंग स्टिल डे, दे डोंट हैव राइट्स, दे जस्ट गिव सम फूड, नॉट मच बट फूड के वो जिंदा रह रहे हैं और उसे यूज करते हैं, ह्यूमंस ने ये किया है, ठीक है। अब हम ज्यादातर केस के अंदर रोबोट्स के साथ भी मेरे ख्याल में यही करेंगे, एंड एट द एंड वी हैव टू डेवलप सम राइट। व्हाट डू यू थिंक, देयर मस्ट बी राइट्स और नॉट? I think they're not so much important. Like rights important इस सेंस में कह सकते हैं कि हमें उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, उनकी मेंटेनेंस का रखना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने रोबोट को कोई धक्का दिया है तो वो ऐसी चीज़ है कि वो रिपेयर हो सकती है। अगर हम इंसान को धक्का दें या किसी जानवर को धक्का दें तो उसको चोट लगेगी, उसकी रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब ये मेडिकेशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर उसको ट्रक के नीचे ही दे दो वो तो बिल्कुल ही मर जाएगा, लेकिन इन केस अगर फॉर एग्जांपल रोबोट को धक्का दें और वो गिर जाए या उसको चोट आ जाए या फिर सेम इन द केस वो भी ट्रक के नीचे आ जाए तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन को रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ह्यूमन राइट्स, फिर एनिमल राइट्स और उसके बाद नेचर एंड देन रोबोटिक राइट्स। लेकिन रोबोटिक राइट्स में हमें ये नहीं है कि हम उसे पुश ना करें या उसे ये ना करें। हम उनके अगर उनके राइट्स हैं तो वो मैं प्रेफर करूँगा उनकी मेंटेनेंस राइट कि फॉर एग्जांपल एक रोबोट को 10 साल हो गए हैं तो ये नहीं कि बस वो 10 साल पड़ा रहा है, उसको उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। उसका ये उसका भी ह्यूमन को फायदा है, उसकी मेंटेनेंस होगी वो बहुत और अच्छा एफिशिएंटली वर्क करेगा। In future we will talk about like if we have to as a common man develop rights for the robots, how we can see robots, ठीक है, तो देखेंगे इंशाल्लाह, it will be really interesting. Well, that's into conversation, but last question. Yes. If you have to choose between the human partner of yours versus the exact replica, maybe the better than the human partner, who would you choose and why? Okay. When अगर वो जिस तरह आपने वीडियो दिखाई है डॉग की तरह तो मुझे और गहरा सोचना पड़ेगा जिस तरह रेप्लिका उसका है। आई एम टोटली अमेज्ड, लेकिन ह्यूमन रीजन, देयर आर मेनी रीजन। फर्स्ट इज फॉर एग्जांपल रोबोट को मैंने स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों के लिए डिज़ाइन कर दिया, इवन बेटर के लिए कर दिया। ह्यूमन चेंज होता रहता है, ह्यूमन नेचर चेंज होती रहती है। अच्छा, एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहूँगा, जो क्वेश्चन है उसमें लाइफ से रिलेटेड है, लाइक मैं जनरल जो लाइफ जी रहा हूँ उसमें एज अ पार्टनर
या फिर एज अ कोई काम करना हो, लाइक जॉब पे हूँ और मुझे वहाँ किसी की हेल्प चाहिए, या काम पे कोई, मैंने काम से रिलेटेड पूछ रहे हो या फिर आप लाइफ से रिलेटेड पूछ रहे हो? पार्टनर इज समथिंग लाइक काम से रिलेटेड भी हो सकता है. पार्टनर इज जनरल थिंग. More specifically, if I मिक्स। talk about this question, it will be हम्म। about if you are men or if you are men, then we will talk about the women, ओके male or female. ओके ओके, आई गॉट इट। बेसिकली ह्यूमन नेचर है वो चेंज होती रहती है। अगर हम अगर कोई मेरे पास बेटर रिपब्लिका है रोबोट का, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 24 ईयर्स का हूँ और मैं 30-35 ईयर्स में जाता हूँ, तो मेरी नीड्स, मेरे सोच, मेरा नेचर चेंज होगा। तो अब रोबोट जो है वो उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं बना हुआ, ठीक है, उसको हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, वो आगे फर्दर है, वो फिर आगे फर्दर रिसर्च होगी, अच्छा जी इस मूड के लिए क्या, इस मूड के लिए क्या। लेकिन जो ह्यूमन है वो जज करता है, जज इन सेंस कह रहा हूँ कि वो देखता है, वो देखता है, ऑब्जर्व करता है और उसको अपने मुताबिक उसमें चेंज कर लेता है, या फिर उसको वैसे ही ट्रीट करने की कोशिश करता है जैसे वो चाहता है। तो Hmm. ह्यूमन, So you are preferring. बिकॉज ये है कि काम की बात एक्यूरेसी की, तो ह्यूमन भी एक्यूरेट कर लेते हैं काम, लेकिन उसमें ये आता है कि मशीन को कंपेरेबल नो डाउट नहीं कर सकते। जो अब हम माइक्रोन्स में अगर काम करना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ह्यूमन खुद कर सके। लेकिन अगर होल लाइफ को देखना है अगर हमने, तो ह्यूमन प्रेफरेबल। Hmm. अब आप Okay. डिसएग्री करोगे, ठीक है। ये मैंने आपका इंटरव्यू, एक दफा अब्दुल्ला आपका इंटरव्यू होगा। Okay, okay. Why not? Sure. That's the end of the question, I guess. Yeah, the last one. If would you like to share experience of love, or maybe the other feeling, the opposite pole of love is hate, a personal experience of yours, which you feel that it's really great to experience love, or really show what love is, if you would like to share. लव फॉर Love for ह्यूमन everything. मशीन। Love for everything, maybe machines, animal, or humans. ओके, सो रिलेशन ऑफ, लाइक इन माय केस, आई मोस्टली स्पेंड माय टाइम with my friends. I'm saying in this sense, like अगर मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो दोस्तों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ तो अगर उसमें कोई कॉल आ जाती है तो हम ये नहीं करते कि यार अच्छा ये बाद में अटेंड कर लेंगे, हम वो छोड़ के फिर कॉल अटेंड करते हैं पहले। अब किस स्पेसिफिकली नहीं कहना चाहूँगा कि मैं एक स्पेसिफिक बंदे से करता हूँ या एक स्पेसिफिक रिलेशन से करता हूँ। नो, एवरी रिलेशन, मेरे लिए सारे रिलेशन जो हैं वो बड़े, मैं जिनसे प्यार करता हूँ वो बहुत ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, वो सब बहुत करीब हैं, आप भी उन्हीं में हैं। ठीक है। Thank you. तो इसमें ये है कि कुछ स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, अगर रिलेशन कोई, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि यार किसने मुझे कितना फ़ायदा पहुंचाया है, वो प्यार नहीं होता फिर, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि यार इसके साथ मुझे इतना बेनिफिट हुआ या इसके साथ इतना मज़ा आया, नहीं, जिससे प्यार होता है उसके साथ मज़ा आता है, चाहे वो टाइम कम हो चाहे टाइम वो ज़्यादा हो। Hmm. Last, but I would say last. Do you want ओके। perfection in your life? नो, Why? बिकॉज आई वांट टू लर्न। इफ आई एम परफेक्ट then there's nothing to learn. I want to explore. If I'm perfect, then I will not explore. That's why. Okay, that's the last question, I guess. That's the last question. Yeah. So, Arshad, it's a wonderful talk to you. I really learned Thank you. very, very matlab, like, amazing things from you today. Okay, and we will looking forward to have conversation again on some great topic. इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई ज्वाइंट वेंचर करेंगे और 3-4 और लोग आएंगे ताकि डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हों और हर कोई मिलके अपनी राय दे। Yeah, yeah, definitely. Okay, thank you for ओके giving me अब्दुल्ला, such a थैंक great यू time. अब्दुल्ला।
Okay. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.